Assalamualaikum. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. اب زیادہ آپ کو پتا ہے نا ٹائم نہیں رہا عید میں تو a lot of people are Eid shopping these days. عبداللہ سے پہلے تو میں دیکھیں عید شاپنگ اس عید پہ آپ کو پتا ہے نا کپڑوں جوتوں کی نہیں ہوتی ہے. Of course and that is what I meant. مطلب it is understood عبداللہ کہ یہ دوسری عید ہے تو یہ ایک اور قسم کی شاپنگ ادھر ہوتی ہے. اب مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ٹرینڈ بدلے گا اس دفعہ آن لائن قربانی کی طرف, اجتماعی قربانی کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہوگا which is evident as well. اس مرتبہ اجتماعی قربانی لوگ زیادہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں شوقین افراد کی کمی تو ہے نہیں. Obviously. اچھا بائی دا وے اس عید کو لڑکوں کی عید بھی اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز اس میں ان کا انٹرسٹ بڑا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جانور جا کے جو پک کرنا, چوز کرنا, اس کو دیکھنا, سارے ایس او پیز جو آپ کے لیے. It is not necessary. مجھے لگتا ہے کہ میری بیگم کا میرے سے زیادہ انٹرسٹ ہے. Things are changing and I'm very actually very happy to know that. تو ہر دفعہ میں ہمیشہ مجھے تو 2-3 عیدوں سے وہی انسسٹ کرتی ہیں کہ لے آئیں, اتنے دن پہلے لے آئیں. میں کہتا ہوں کہ کون سنبھالے گا لا کے بیل یا گائے وغیرہ. یہ تو سارا کچھ ہے لیکن آج میں آپ کے لیے کچھ اسپیشل لائی ہوں, آپ کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ کچھ دکھانا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ عید جو ہے یہ سال ہی پورا مختلف ہے ہر کسی سال سے, تو اس سال کی تیاریاں بھی ڈفرینٹ ہیں. یہ دیکھیں جی, اس وقت آج کل منڈی میں جانور آنے سے پہلے پورا اس کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے. عبداللہ نہلایا دھلایا تو جاتا ہی ہے اور آپ جب اس کو خرید لیتے ہیں اس کے بعد آپ دیر از اے ہول ایس او پی جس میں آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے, دھونا ہے, صاف کرنا ہے. میری بات سنیں, یہ گھر آ کے بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ گھر آ کے بھی ہو رہا ہے. یہ ایک نیا بزنس شروع کیا ہے. ویسے آئیڈیاز ہے نا, آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے. کرونا نے بہت سے نیو بزنس آئیڈیاز کو تقویت دی ہے, فروغ دیا ہے, اور اس میں ایک یہ بھی ہے جس طرح گاڑیاں آپ کو پتا ہے نا آپ اندر سے ڈس انفیکٹ کرنے کی, ایگزیکٹلی گاڑیاں اندر سے ڈس انفیکٹ کرنے کا پورا میکنزم ہے. اسی طرح آپ جانور گھر لا رہے ہیں اس سے پہلے آپ منڈی میں ہی ایک اسٹیشن بنا ہوا ہے, ڈس انفیکشن اسٹیشن, اور وہاں پہ جائیں اپنا جانور آپ ڈس انفیکٹ کریں. لیکن پلیز یہ خود سے گھر پہ میرا خیال ہے کہ نہ کیجیے گا پریکٹس, کیونکہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ کون سا کیمیکل ہے جو جانور کو سوٹ کرے گا, کون سا نہیں کرے گا. یہ ساری انفارمیشن تو مل ہی چاہیے. اچھا یہ رجحان جو ہے نا, یہ رجحان بڑھ رہا ہے, تو اٹ از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دا منڈی کے وہیں یہ اسٹیشن بنا ہوگا. یہ ایکچولی شہروں میں بھی یہ چیز جو ہے, یہ فیسلٹی جو ہے یہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا وہ جس طرح گاڑی کو سروس کرتے ہیں نا, اس طرح سے فوم پورا چھڑکا جا رہا ہے بیل پہ اور اس کے بعد پانی کا پریشر مارا جائے گا. I like the idea. مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کراچی میں کل رات کو کافی بارش ہوئی ہے. انفیکٹ کچھ علاقوں میں تو ٹھیک ٹھاک قسم کی بارش ہوئی ہے, اور بعض علاقوں میں کہیں بارش نہیں ہوئی. میرے یہاں بالکل بارش نہیں ہوئی. Really? ہاں بالکل, کیونکہ آپ بھی تو نزدیک ہی ہیں میرے. تو میرے یہاں بالکل بارش نہیں ہوئی, although ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, بجلی کڑک رہی تھی. اٹھ کے مجھے پتا چلا کہ کچھ کہیں نہ کہیں تو بارش ہوئی ہے کیونکہ موسم کافی زبردست قسم کا ہوا تھا. سو اٹس فرائیڈے. یہ لو جی, what is this us? Is this کراچی? جی بالکل. Oh my God, I missed it. I saw it. میں تو باہر ہی بیٹھا ہوا تھا. اور کل رات تو سونے والی یعنی نہیں تھی, تو یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی, ورنہ تو ہم آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہتے. نہیں, آسمان کی طرف دیکھیں, میں تو پیڈسٹل فین لگا کے نا آرام سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا باہر اور دیکھتا رہا تھا کہ کیا بجلی چمک رہی ہے. اور مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کیونکہ میرے کچھ ایسے پودے پلانٹ کیے ہیں جن کو آج کل یہ گارڈنر بنے ہوئے ہیں نا, جن کو پانی کی ابھی ضرورت نہیں ہے, تو I was a little worried. بہت سی باتیں کرنی ہے ایز یو کین سے. عبداللہ تو اپنی چھتری لے کے پوری رات انتظار میں تھے میرا خیال ہے بارش کی. ویسے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا جب اس قسم کی میں باتیں سنتی ہوں, پھر آپ لوگوں کو ہم لوگ ملواتے ہیں ایسے بچوں سے ہوا سچ ہائی اچیورز. مطلب 13 سال کی عمر میں آئی ایم سوری ٹو سے ذرا سوچیں کہ آپ کیا کر رہے تھے اور ہم کیا کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے پھر اسی طرح, اور یہ پھر بہت دور تک جاتے ہیں. اسی طرح مجھے ملالہ کی بھی کہانی یاد آئی نا, گلبکئی کی کہانیاں جو انہوں نے شروع میں لکھنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد آج کہاں ہیں, پوری دنیا کے سامنے ہیں. بائی دی وے آٹا بحران کی آپ بات کر رہی تھی, اس پہ تو ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے. لیکن کل کچھ دوستوں کا شام میں فون آیا کہ جناب کوئی پیٹرول کا دوبارہ سے کرائسس ہونے والا ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بھائی ہم اگلے گھنٹے میں ویسے بات کریں گے, کے لیے رکھ لیتے ہیں. ابھی ہم آٹا بحران کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ون بحران ایٹ اے ٹائم نا. پلیز اوکے. اور ویسے یہ بھی ہونے والی بات ہے بالکل, تو یہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے. وی آر جسٹ بینگ سارکاسٹک. آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف حکومت کو 2 سال ہونے والے ہیں اور دوسری مرتبہ ملک میں آٹے کا بحران سر اٹھا رہا ہے. آٹے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم کے احکامات کے الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. کراچی میں 1 کلو آٹے پر 6 روپے بڑھا دیے گئے ہیں اور شہر میں 2.5 نمبر آٹے کی 10 کلو کی بوری 545 روپے ہے, اور فائن آٹے کی 10 کلو کی بوری 560 روپے کی ہو گئی ہے. چکی کے آٹے کی 10 کلو کی بوری 620 روپے ہو گئی ہے. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے دعویٰ کیا تھا کہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گندم کا بحران پیدا ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ریٹ زیادہ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے گندم کو اب
होर्ड करना शुरू कर दिया है ताकि कीमतों में मसनूई इजाफा किया जाए और सही वक्त पर जिस तरह के चीनी बहरान में, अद्वियात बहरान में और बाकी तमाम बहरान में लोगों ने पैसे कमाए, माफियाज ने पैसे कमाए, उसी तरीके से इस सिचुएशन में भी पैसे कमाए जाए। अच्छा, यू डू नो कि पंजाब में तो आटे का बहरान चल ही रहा है, तो अब ये कराची में आया है, तो ऑलरेडी पंजाब में तो ये सिचुएशन, और पंजाब में जब आटे का बहरान होता है तो खैबर पख्तूनख्वा में आटे की सप्लाई डायरेक्ट मुतासर होती है, क्योंकि जो मेजर चंक है गंदम का वो पंजाब से जाता है आटे का खैबर पख्तूनख्वा में। हम आटे की क्राइसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ दूध की कीमतें आप देख रही हैं क्या वो तो हमने कल परसों इस पे बात भी की थी। अगर ये बुनियादी ज़रूरत ही इंसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी कि लोगों को एक्चुअली 2 वक्त रोटी खाने के लाले पड़ सकते हैं और पड़े हुए हैं। अच्छा, ये भी साथ आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ इन बातों का जवाब देने के बजाय इल्जामात का सहारा ले रही है। अच्छा, ये पिछली हुकूमत ने तो नहीं किया था? सुन लो ना। अच्छा, सॉरी। पीपल्स पार्टी के खास लोगों के गोदाम में ये गंदम पड़ी है और आज जो शॉर्टेज हो रही है, इसलिए शॉर्टेज ये कह रहे हैं सितंबर में देंगे, इसलिए सितंबर में देंगे कि ये चोरी करा के इन्होंने अपने ज़ाती गोदामों में रख दी है। अब जब ये फ्लोर मिल को सिंध हुकूमत सरकारी गंदम नहीं दे रही, जब नहीं दे रही तो प्राइवेट लोगों के पास जाएंगे। प्राइवेट लोग कौन है? जिनको इन्होंने गंदम बेची हुई है और उससे फ़ायदा होगा उसके। और दूसरी जानिब कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार, इमरान खान जिम्मेदार। और पिछले साल भी मुल्क में आटे और गंदम का संगीन बहरान पैदा हुआ था, जिसके बाद तहकीकात की गई थी, रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और आपको पता है कि जब बड़े इंडस्ट्रियल खपत आटे की कम होती है, जैसा कि आजकल है रेस्टोरेंट्स में, आपको होता है मनों टनों आटा इस्तेमाल होता है। आई हैव एन एक्सपीरियंस माई सेल्फ। तो फिर क्यों आटे का बहरान इस तरह से दोबारा पैदा हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उस तरह से कमर्शियल यूजेज कम हुआ है। इतनी कम हुई है तो फिर बहरान होना इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। और इसी पे हमने पता भी करना है कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तजारत और तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार हमारे साथ हैं। शानदाना, आपसे पूछना चाहेंगे कि मुल्क भर से इतलात आ रही हैं कि आटा महंगे से महंगा तर होता जा रहा है और इसकी किल्लत का भी सुनने में आ रहा है। तो बज़ाहिर ये मामला भी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सियासी बयानबाजी की जंग की तरफ जा रहा है। हालिया बहरान की वजह आपको क्या नजर आती है? बदकिस्मती इस वक्त तरफ सिंध में आ रही है। सिंध में इस वक्त 20 किलो आटे की कीमत 1070 रुपए है, ये आप चेक करवा लीजिएगा। दूसरी बात, वज़ीर आज़म ने सख्ती से ऑर्डर दिया कि देखिए सिंध में, ये पिछले साल भी मसला आया था, सिंध हुकूमत ये बता रही है कि हम अक्टूबर में रिलीज करेंगे। अब अगर अक्टूबर में रिलीज करेंगे तो एक सूबे में तो मसला आएगा ना। फेडरेशन ने तो सब सूबों को ऑर्डर दिया कि आप अपनी कमी पूरी करें, और पाकिस्तान की टोटल हर साल जो होती है औसतन 24 मिलियन टन जरूरत होती है। हमने तकरीबन 22.5 मिलियन टन को प्रोक्योर कर लिया हुकूमत ने, और 1.5 मिलियन टन की इंपोर्ट की इजाजत की बात हो रही है। वो कल इंशाल्लाह रूल्स होके आ जाएंगे। इशू जो है, देखिए याद रखिए, बिजनेस ये माफियाज जो है पाकिस्तान में, चाहे वो आटे के हो चाहे चीनी का, वो एक रात में नहीं बने हैं। वो 30-40 साल उन्होंने अपनी जड़ें जमाई हैं इस मुल्क में, गरीबों की पैरों पे, गरीबों की कमर में, गरीबों के सुकून को छीन के ये लोग अरबपति बने। इनके जहाज बने, मेरे और आपके जहाज क्यों नहीं है? ऐसे कोई जहाज नहीं खरीद सकता। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जो चीनी माफिया ने एक स्टे लिया था कराची में, वो विकेट करवा दिया। पहले अगर आपको याद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लिया था, फिर कराची हाई कोर्ट में ले लिया। ये लड़ाई अब हमारी लॉन्ग टर्म लड़ाई है। अब वजीर आजम ने और इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तहैया कर लिया है कि हम कोई भी मसनूई पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, शॉर्टेज कोई कमी नहीं आने देंगे, ताकि लोगों की जिंदगी मजीद खराब। अच्छा, अब चीनी माफिया की भी आपने खुद ही बात कर दी और जहाज़ों का तस्करा कर दिया, तो अचानक से आपके जहाज़ वाले भी मुझे याद आए। जहांगीर तरीन साहब तो खैर आपके ना कहा जाए, वो तो अभी नहीं वापस आ रहे हैं ना कहीं से। एनी हाउ, शानदाना साहबा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 सालों में दूसरी बार इस नौयत का बड़ा बहरान पैदा हो रहा है और उस पर आटा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई, लेकिन लगता यही है कि सिफारिशात पर कोई अमल होता नहीं है। तो क्या हुकूमत अपनी इतनी गलती तस्लीम करेगी कि हाँ जी, हमें पहले भी इस बहरान का सामना था, लेकिन जो दी गई थी सिफारिशात उस पर किसी ने अमल ही नहीं किया? जब आप इन माफियाज के पीछे जाएंगे, आपने कहा कि आटे चीनी की बहरान के पीछे रिपोर्ट आई, आप मुझे अगर पाकिस्तान की माजी में कोई ऐसी हुकूमत बता दे जिन्होंने अपने ही वक्त में अपने ही हुए बहरानों के ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी ली, कोई एक्शन लिया। यहाँ तक कि आपने अगर रिपोर्टें देखी हो, ये दोनों जो GITs आई थी आटे पे, फोरेंसिक भी आई थी चीनी पे, तो उसमें तो उन्होंने डिटेल्ड FIA ये भी बता दिया कि किसको किस
एक्ट यानी आपने SCCP एक्ट के नीचे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे, पाकिस्तान पीनल कोड, किस कानून के नीचे लोगों को ट्राई भी करना है। इसके बाद एक्शन हो रहा है, एक्शन होगा। आपने ये देखा कि हमने तमाम जितनी भी पाकिस्तान के शुगर मिल्स तमाम के खिलाफ फोरेंसिक शुरू कर दिया, क्योंकि हम पे ये इल्जाम आया कि हमने सिर्फ 11 का फोरेंसिक किया, बाकी छोड़ दिया क्योंकि इनसे हमारे सियासी ताल्लुकात थे। अब तमाम का फोरेंसिक होगा और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म में है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। देखिए, एक होता है मालदार आदमी, उसका जहाज मिस हो जाता है तो आप कहते हैं चलो ठीक है जी दूसरे जहाज पर ले जाएगा। आप एक गरीब की 2 वक्त की रोटी वो भी छीन लें तो आप किस किस्म के इंसान हैं? आपका इस्लाम की तरह, आपकी नमाजें, आपकी उम्रें जो आप जाते हैं धड़ाधड़, ये नहीं हो सकता कि नया पाकिस्तान भी हो, तब्दीली भी और लोग भूख से मरे। कभी ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है शांदाना, आपकी तो हमने एक्सप्लेनेशंस भी सुन ली, लेकिन अब बुनियादी सवाल तो ऑब्वियसली वही रहेगा कि इस मसले का हल क्या है। ऑब्वियसली वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। सस्ता आटा लोगों को कैसे मिलेगा, हुकूमत के पास इसका प्लान क्या है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। डेडलाइन क्या देंगे, कब तक मसला ये हल हो जाएगा, ये सारे वो सवाल हैं। ऑब्वियसली अवाम इंतजार में है कि इसका जवाब मिल जाए। देखिए, मसला अभी बना नहीं है, मसले की बातें हो रही हैं। ठीक, हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्राइम मिनिस्टर ने आज ऑर्डर दिया कि जो गवर्नमेंट के अपने व्हीट स्टॉक्स, मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने हमारी ज़रूरत तकरीबन 24 मिलियन टन की औसतन होती है हर साल की आटे की, गंदम की, उसमें से हमने तकरीबन 22.5 मिलियन टन ले लिया है, उसकी पूरी हो चुकी है। हमारे पूरे साल की ज़रूरियात 280 बिलियन रुपया प्राइम मिनिस्टर ने कोविड पैकेज में दिया आटे की प्रोक्योरमेंट के लिए, गंदम की। और सूबों में इस वक्त आटा फुल कंप्लीट है, पंजाब में भी, सिंध में, पंजाब में और KPK में कोई बहरान नहीं आएगा इंशाल्लाह। सिंध हुकूमत इस वक्त हमारे साथ नहीं कोऑपरेट कर रही है। उम्मीद है कि जो उनके फूड मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो वफाक के साथ बैठ के वफाक की बात समझेंगे और सिंध में भी ये बहरान नहीं आएगा। बाकी पाकिस्तान में इंशाल्लाह नहीं आएगा। अगर कमी आती है आटे की, वो हम दरामद करेंगे। अच्छा शानदाना, बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से बस यही लगा है कि अभी बहरान नहीं आया है, और आपकी नज़र में क्या सिर्फ गायब होना बहरान है या फिर आटे का महंगा मिलना भी एक बहरान है? क्योंकि आवाम को दोनों से फ़र्क पड़ता है। अवामी सतह पे अगर आप आकर सोचें और सिंध हुकूमत भाई कोऑर्डिनेट करें इनके साथ, कह रहे हैं लोग वफाकी हुकूमत, और ज़ाहिर है आवाम को तो आटा चाहिए, फिर वो सिंध हुकूमत से भी सवाल पूछेंगे और वफाक से भी पूछेंगे। That is very nice. ऑलराउंडर टाइप है बच्चा। हाँ, बिलावल लतीफ़ दावर से हम बात करते हैं। बिलावल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है? हाँ, मैं ठीक। अच्छा ठीक है, आपकी खांसी से अब डरने की जरूरत नहीं, अभी एंटीबॉडीज अब तो आपकी खांसी से डरने की जरूरत है। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू ओवर। बिलावल बताइएगा, आपकी उम्र के बच्चे ज़ाहिर है किताबें पढ़ने का ख्याल कर लें तो बड़ी बात है, माँ बाप गनीमत समझते हैं इसको। आपने किताब ही लिख डाली, कैसे आया ख्याल, कोई इंस्पिरेशन वगैरह, और ये टॉपिक कैसे चूज़ किया आपने? जी, ये ख्याल ऐसा है कि जब पहली बार APS अटैक हुआ था, आई थिंक 2014-16 दिसंबर पे, तो उसके बाद मैंने एक किताब लिखने का फ़ैसला किया ताकि मैं अपने पश्तून भाइयों बल्कि सारे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकूं। What a diligent and conscientious person you are। अभी से इतनी सी उम्र में इतनी आपकी थॉट प्रोसेस है बिलावल। बहुत ही क्यूरियस है जी, पश्तून हीरोज़ के हवाले से आपने ये किताब लिखी है और काफ़ी लंबी चौड़ी किताब है, 130 पेजेस और सो। तो क्या इसमें बहुत रिसर्च रिक्वायर्ड थी, सुनते आते थे, कितना ऑथेंटिक करने की कोशिश की आपने किताब को? जी, ये तो ज़रूरी बात है कि जब आप एक किताब लिखते हो तो रिसर्च भी तो करना पड़ता है। ये मैंने बहुत सी किताबों बल्कि आर्टिकल्स लाइब्रेरी में गया, उसने वहाँ पर मैंने बहुत सी रिसर्च किए थे और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है पठानों के बारे में, जैसे कि द पठान बाय सर ओलिवर रॉय एंड द पठान कथन बाय अबू बकर सिद्दीकी। वंडरफुल जनाब, ज़ाहिर सी बात है कि रिसर्च तो करनी पड़ती है। अच्छा, आपकी किताब बताइएगा कि स्कूल वगैरह में हौसला अफजाई हुई है आपकी इस सिलसिले में, और आगे क्या इरादा है? हाँ, क्या सोचा? किसने इनकरेज किया, किसने सबसे ज़्यादा इनकरेज किया, ये बताएं सबसे पहले तो। जी ज़रूर, मुझे भरपूर मदद मिली, मेरे भाइयों बल्कि पूरी फैमिली ने मुझे मदद दी कि ताकि मैं अपने फैमिली का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकूं, और मेरे अब्बू और अम्मी यानी कि पेरेंट्स ने भी मुझे मेरे लिए दुआएं की ताकि मैं अपने दावड़ कौम के बल्कि सारे पठानों का नाम फ़ख्र कर सकूं। लवली, यानी एवरीबडी वाज इन विद यू। तो अब क्या इरादा है, मतलब 13 साल की उम्र में जो बच्चा, जो शख्स मैं कहूँगी इसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की किताब लिख ली हो, तो उसने आगे क्या क्या करना है, क्या सोचा है? आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, और इन फ्यूचर
मैं बलूचिस्तान के कल्चर, लैंड, सकाफत, जैसे कि बलूचिस्तान भी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम रखता है, उसके बारे में मैं किताब लिखूंगा। ज़बरदस्त आपके एस्पिरेशंस हैं, ब्रिलियंट आपके गोल्स हैं, यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, और सर हम जल्द इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एंड वी आर ऑलरेडी सो प्राउड ऑफ यू। तो इसी तरह आप ये सफ़र, अपनी मेहनत जारी रखें। What an inspiration this boy is, Bilawal Lateef Dawar. Proud of you. क्या ज़बरदस्त बात है कि जब चले भी जाते हैं these legends of ours, तो उनके बारे में जिक्र हो रहा होता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। मतलब ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, है ना, even when after you're gone, आपकी लेगेसी ऐसी होनी चाहिए। Exactly, कि आपको इस तरह ट्रिब्यूट्स मिल रहे हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, ज़रा सियासी चीज़ों की बात करेंगे। लेगेसी की अगर बात कर ही रहे हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना जो पीछे कोई लेगेसी छोड़ के नहीं जाते। पर देख लेते हैं ना, नहीं वैसे ओवरऑल बहुत से लोग ऐसे होते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान की हम बात नहीं कर रहे कैटेगोरिकली में, लेकिन खबर पे आ जाते हैं इसके बाद। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के मामले पर शिकायत बढ़ रही हैं और तहरीक इंसाफ को इस मामले में ज़बरदस्त दबाव का सामना है। लगता नहीं कि वज़ीर आज़म इस बार भी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ करके मामला दबा पाएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने से मुतालिक चलने वाली खबरों की ट्विटर पर तरदीद कर दी। शिबली फराज ने कहा कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। अवाम तो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर नापसंदगी का इजहार ऑब्वियसली करते रहते हैं, खुद कई वफाकी वजीर भी मुतमईन नहीं। एक दफ़ा सुन लेंगे। में लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। पंजाब में लोगों की रिजर्वेशन है, मुझे खुद रिजर्वेशन है। पंजाब में वाकई अमन व अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, प्राइसेस पे लोगों ने लूट डाली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बुज़दार की नाकामी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है अब वो सीख गया, ठीक हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना और ब्यूरोक्रेसी को कारकर्दगी दिखाने का अल्टीमेटम सिर्फ मरकज़ी हुकूमत तक महदूद नहीं है, पंजाब हुकूमत को भी यही पैगाम दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म गवर्नर पंजाब से मिले, जबकि इसी हफ्ते पंजाब के सूबाई वज़रा मुराद रास, मोहसिन लगारी और सब्तैन खान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान भी वज़ीर आज़म से कई मुलाकातें कर चुके हैं। सो दैट इज़ द लेटेस्ट, लेट्स सी। वैसे सुहेल बड़ाइच साहब से हम परसों तरसों बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि अगले 6 महीने में कोई ना कोई पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। लेट्स सी कि जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब के पास क्या खबरें। रईस अंसारी साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, एक मरतबा फिर वही बात कही जा रही है कि पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल हैं, और एक मरतबा फिर खबरें गर्दिश में हैं कि कुछ तब्दील होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, आपकी इतलात जो है इसके मुताबिक क्या है, क्या होने वाला है, क्या तब्दीलियाँ कुछ हम एक्सपेक्ट करें या नहीं, बताइए। ब्यूरोक्रेसी में होंगी या फिर बड़े पैमाने पे होने वाली हैं इस दफ़ा? गवर्नेंस के मसाइल तो चलते आ रहे हैं, बेशक पेट्रोल की कीमत ऊपर हो, बिजली की कीमत ऊपर हो या नीचे हो, ये काम सूबाई हुकूमत का कंट्रोल करना। अब इसमें कई वजूहत हैं। जो ताजर तबका, वो ज़रा बड़ा तबका जो ताजर का है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, और कुछ अफसरान भी ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के छेते भी यहाँ लगे हुए हैं, और कुछ अफसर जो नैब की जो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हैं वो उससे डरते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो वहाँ ना पकड़े जाएँ। तो ये गवर्नेंस का मसला तो चलता आ रहा है और अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। जहाँ तक दूसरी बात रही कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़, वो कोई अभी तक उसका कोई इम्कान नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अभी चेंज हुए हैं, लेकिन जहाँ इक्का दुक्का ज़रूरत है वहाँ तब्दीली हो रही है। वाज़ा तौर पर जो है ब्यूरोक्रेसी में किसी किस्म की तब्दीली के इम्कान नहीं है। कुछ अफसरान वफाकी हुकूमत में गए हैं तो उसकी जगह दूसरे रख लिए गए हैं। लेकिन जो आपने बात पूछी बड़ी तब्दीली की, वो अब फिर एक बार वो चल पड़ी है तब्दीली की बात, वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बात। उस पर जो है वो आजकल बहुत बहस हो रही है, बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं। वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की जो आवाज़ है वो। अच्छा रईस साहब, उस्मान बुज़दार साहब पर तो तहरीक इंसाफ के लोगों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात तो थे, अब 2 साल होने को आए हैं। अगर वज़ारत आला की कुर्सी किसी और को मिलनी भी है तो मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन क्या होगी? क्या वो खुद इसके उम्मीदवार बनना चाहेंगे? बिकॉज ऑलमोस्ट आधा टाइम तो गुजर गया है, नोबडी वांट्स टू टेक द केक हाफ बेक्ड, क्योंकि वो समझ नहीं आता ना। हाँ, उसके अपने मसले होते हैं, या फिर या ऐसा है कि जैसे वो सपोर्ट करने को तैयार हैं उसको ले आए लोग। ज़लाई ने उस्मान बुज़दार साहब को वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने इमरान खान को बता दिया है कि अगर उस्मान बुज़दार को चेंज किया गया तो वो भी साथ नहीं रहेंगे। तो जब तक उस्मान बुज़दार हैं तो परवेज़ ज़लाई तो उनके साथ हैं। लेकिन दूसरी बात आपने की कि मुस्लिम लीग काफ कहाँ खड़ी होगी,
تو اگر عثمان بزدار کو ہٹایا گیا تو سب سے بڑے جو امیدوار میری نظر میں، میرے رائے کے مطابق جو ہوں گے وہ پرویز الہی خود ہوں گے، کیونکہ پرویز الہی جو ہیں وہ سیاسی شطرنج کے پرانے کھلاڑی ہیں. جب انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ووٹ لیا تھا تو اس وقت بھی وہ کئی ووٹ نون لیگ کے اپنے اس میں بیلٹ باکس میں ڈلوا گئے تھے. تو وہ اگر وہ سب سے بڑے بنے امیدوار تو اس میں نون لیگ کے تو کافی لوگ وہ توڑیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ یہ تحریک انصاف کی کچھ لوگ اپنے ساتھ ملا لیں. تو اگر یہ تبدیلی چلی تو اپنا جو پرویز الہی ہیں وہ خود امیدوار بن کے سب سے بڑے سامنے آئیں گے. ادروائز جو نظر آ رہا ہے وہ عثمان بزداری جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر رہیں گے اور انہی کا امکان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ وقت آ رہا ہے اس میں ایک بڑی تیزی نظر آ رہی ہے، اسپیشلی جو یونس انصاری جن کی سرکردگی میں پچھلے دنوں 6 ممبران اسمبلی نون لیگ کے اور ایک پیپلز پارٹی کا عثمان بزدار سے ملے تھے. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 35 لوگ اور اکٹھے کر لیے ہیں اپنی ساتھ مسلم لیگ نون کے. اگر کوئی ایسی تبدیلی آئی اور مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا گروپ سامنے آیا تو اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ اور کیا تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن اس صورت میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی گروپ سامنے آیا تو پرویز الہی جو ہیں وہ خود میدان میں آ سکتے ہیں. alright, 2-3 پاسبل سیناریوز ہیں جو بن سکتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا رئیس انصاری صاحب. اچھا جی، جو تجزیہ رئیس صاحب نے دیا ہے اس کو ہم وہیں تک چھوڑیں گے اینڈ وی ول ناٹ ایڈ آن ٹو دیٹ. سم ٹائمز یو ونڈر نا کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ کہ امریکہ میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے یو اسٹارٹ ونڈرنگ کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے آفٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، پھر تو کچھ بھی لگتا ہے نا ہو جائے گا. آپ کو بتائیں کہ کانیا ویسٹ نے امریکی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان تو کیا تھا. بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ امریکی گلوکار جو ہیں یہ ریکارڈنگ آرٹسٹ شاید سنجیدہ نہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات نہیں لڑیں گے، لیکن پھر وہ میدان میں پھر کود پڑے. مطلب آپ یہ بھی دیکھ لیں. اور اب تو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. 16 جولائی کو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. کانیا ویسٹ نے $35,000 نامزدگی فیس بھی ادا کی ہے. سو ہی سیمز پریٹی سیریس اباؤٹ اٹ. کانیا ویسٹ کے لیے $35,000 از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. ہاں the amount of money that he has. So میں نے آپ کو کہا نا ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد تو اب کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے فرام دا یو ایس. بالکل. آپ کو بتائیں کہ امریکی صدارتی انتخابات 3 نومبر کو ہوں گے اس سال، اور امریکہ کے نئے صدر کے لیے کانٹے کا مقابلہ ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن کے درمیان یہ سب کچھ ہوگا. اور کانیا ویسٹ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کے طور پر جانا جاتا تھا، مگر اب وہ خود صدارتی جو ہیں امیدوار بن چکے ہیں، اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. پہلے بڑے پہلی ہوتے تھے ساتھ. کم کارڈیشین بھی بڑی فرینڈ تھی ان کی، لیکن اب لگتا ہے He is 43 years old اور معروف ریپر ہیں، ریکارڈنگ آرٹسٹ ہیں اور انٹرپرینور ہیں، پروڈیوسر ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی 100 شخصیات میں بھی شامل ہیں. بن سکتے ہیں ویسے یہ پریزیڈنٹ، ایسی ہی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں ادھر. اچھا جی، ابھی آگے بڑھیں کہ نہیں آپ بتائیں. اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جہاز اب بیرون ملک نہیں جا سکتے، اور اس فیصلے نے پاکستان کی پہلے سے ڈاواڈول سیاحتی انڈسٹری کو نئے خطرات سے دوچار کر دیا، کیونکہ ٹورسٹ بھی جو پاکستان تھا اس کو بہت سہولت ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی حصے سے ایک ڈائریکٹ فلائٹ پکڑ کے اسلام آباد لینڈ کرنے اور اس کے بعد پہاڑوں پہ جانے میں. The idea is to make it easier for them to come, not to make it very difficult, کیونکہ اس کے بعد وہ کیوں سوچیں گے. حکومت نے سیاحتی شعبے کو بہتر بنانے کے اعلانات بہت کر لیے، اب عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا. 1 جون کو وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پر سیاحتی شعبہ کھولنے کا اعلان کیا تھا. آپ کو یاد دلا دیں. لیکن آپ کو پتہ اب تک کھلا نہیں ہے. نہیں ایسا ہوا نہیں. ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدھر ٹورزم صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے، جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس اعلان کو 40 روز سے زائد گزر گئے ہیں، لیکن ملک میں سیاحت اب تک بند پڑی ہے. قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس مسلم لیگ نون کے مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کیا، اور اس پر وزیر مملکت علی محمد خان نے غور کرنے کا وعدہ بھی کر لیا. کورونا کی وجہ سے سارا آن ہولڈ ہوا ہے. اصل میں اب فوکس اس پہ ہونا ہے کہ کم از کم امیڈیٹ ریلیف
उन होटल्स को, उनके होटल ओनर्स को और वो जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में टूरिज़म के बिजनेस से वो कनेक्ट हैं, उनको रिलीफ दिया जाए पोस्ट कोरोना, या कोरोना से रिहेबिलिटेशन उनके कैसे की जाए। बाकी जो नेशनल टूरिज़म पॉलिसी है वो तो एक ऐसा है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन इमीडिएट एक चैलेंज हमारे सामने ये है। 22 जुलाई को इसकी एक जो है मीटिंग आने वाली है, हो सकता है डेट्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसमें इस चीज़ को स्पेसिफिकली देखा जाएगा। आपको बताएं कि मुल्क में सयाहत की सनत तकरीबन 4 माह से ठप पड़ी है और इस शोबे से वाबस्ता कमोबेश 10 लाख अफराद बेरोज़गार हैं। और हुकूमत की तरफ से बातें तो ऑब्वियसली हम सुन ही रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमली तौर पर इक़दामात कम ही नज़र आ रहे हैं। इसको अब एक्सेस देना चाहिए था, आसान करना चाहिए था, इंसेंटिव्स देने चाहिए थे, नॉट जस्ट अनाउंसिंग कि जी खोल दिया मैं सिर्फ देख रहा हूँ जो विजुअल्स हम चला रहे हैं ना, साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरती जिस तरह से नज़र आ रही है और जो मकामात दिखा रहे हैं, कौन है दुनिया में जो ये मनाजिर देखने ना आना चाहता हो और ये देख के एंजॉय ना करे। ये जो विजुअल्स है ना, आप देखिए ये ड्रोन से बने हुए हैं, ड्रोन कैम से, और अब ऐसे भी ड्रोन कैम्स आ जाने चाहिए जिसपे आप खुद बैठ जाएं और इस तरह करके आप पूरे, बिकॉज you will never get this visual unless you are at that vantage point। मतलब आपको ऊपर होना होगा। बेसिकली अट्रैक्शन क्यों है थाईलैंड, क्यों पूरी दुनिया का टूरिस्ट जाता है? एक तो जो खूबसूरती वो है ही, फिर करेंसी का बहुत फर्क है ना, तो आप कम पैसों में बहुत ज़्यादा चीज़ें एंजॉय कर लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी $1 माशाल्लाह आपको पता ही है कितने रुपए में कन्वर्ट होगा। तो मैं ऐसी बातें नहीं सोचती। हाँ, तो बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आए तो उसको करेंसी वाइज कितना फ़ायदा होगा, और यहाँ पे वो भरपूर पैसे लुटा के भी बेस्ट से बेस्ट सहूलत भी रहे तो भी उसे लगेगा कि सस्ती वेकेशन है। हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं, साबिक MD PTDC चौधरी अब्दुल गफूर हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, सियाहती इंडस्ट्री ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि पूरी इंडस्ट्री 100 दिन से ज़ायद से बंद पड़ी है और इसके लिए कुछ ऑब्वियसली किया जाए। तो मौजूदा कोरोना के हालात में हुकूमत क्या कर सकती है? आप क्या सोचते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि मोर देन 90 डेज से हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री ही बंद नहीं है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है ड्यू टू कोरोना। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो सिचुएशन डिफ्यूज़ होती जा रही है और वर्ल्ड टूरिस्ट को वेलकम कहने के लिए बिल्कुल तैयार है। और प्राइम मिनिस्टर की चूँकि पहले दिन से ये उनकी प्रायोरिटी में है टूरिज़म, और उसके लिए जनाब जुल्फ़िकार बुखारी साहब को ये असाइनमेंट उन्होंने दी है और वो उस पर बाकायदा काम कर रहे हैं। और उन्होंने पहले दिन से इस पर अपनी जो SOPs तैयार किए हैं, उसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को, प्राइवेट होटल इंडस्ट्री को, इवन एयरलाइंस को, सबको ऑन बोर्ड लिया और उस पर एक बुकलेट छापी गई जो पूरे पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को और उसके साथ GB और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी गई। बट अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान और KP के चीफ सेक्रेटरी के अलावा बाकी चीफ सेक्रेटरीज ने उससे माजरत कर ली, और अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना की वजह से वो सब मजबूर थे। तो इसके लिए अब मैं समझता हूँ 4 महीने तकरीबन टॉप का हमारा पीक सीज़न होता है टूरिज़म का, तो उसमें मोर देन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट कमोबेश हमारे पास बाकी हैं। अभी भी इनका होमवर्क इन्होंने किया हुआ है और उस पर काम हो सकता है। मैं समझता हूँ अभी भी अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आते तो लोकल जो हमारे डोमेस्टिक टूरिज़म है उसको प्रमोट करना चाहिए। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो अभी भी जो टाइम रह गया है एज इन जुलाई एंड इन अगस्त टिल सितंबर समहाउ, सो बहुत से टूरिस्ट जाना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री कुछ बहाल हो सकती है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है, लेकिन इसे आज से, कल से इनफैक्ट खोलना चाहिए अब। अच्छा, कोई जगह वैसे सजेस्ट कर लें, क्योंकि अब्दुल्ला काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि एक, हाँ लेकिन चीज़ें बंद थी, आपको पता है, मैं जहाँ पता कर रहा था। और अभी हम आपको क्या बताएं, हम आपको एक बात ज़रूर करना चाहते हैं। मैं कल आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि भाई ये क्या तुक है कि 7 बजे के बाद पेट्रोल स्टेशन आप बंद करते हैं। आपको काफ़ी, आपने ट्वीट भी किया, मैंने ट्वीट भी किया हुआ था, क्योंकि इट डज नॉट जस्ट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि आपने अपनी या तो गाड़ी में बैठे होना है या आपने अपनी बाइक वगैरह पे बैठे होना है, आप वहाँ से लोगों से इंटरमिंगल तो नहीं करने जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे ना आप डिज़ाइन चूज कर रहे होते हैं कि आपने कौन सा कढ़ाई वाला पेट्रोल लेना है कि गोटा किनारी वाला लेना है या रंग कौन सा होना है। यू जस्ट गो देयर टू गेट फ्यूल एंड यू जस्ट
just leave the station. मतलब अगर इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल नहीं, तो हम पूछ लेते हैं ना, अगर कोई जस्टिफिकेशन है इसकी कि आपको लगता है कि इससे 1 2 3 ये सब कुछ हो सकता है तो वो बता दें, क्योंकि एक्चुअली अगर जो SOPs को फॉलो करने वाला सीन है तो इससे बेहतर क्या जगह हो सकती है? और पेट्रोल पंप पे आपको पता है वो बैरियर्स भी होते हैं, कोन्स भी लगा सकते हैं. In your car, you are not talking to anybody, you are not touching anything. आपने मास्क तो पहना ही हुआ है. It does not make any sense कि आप पेट्रोल स्टेशन 7 बजे बंद कर दें. और होता उससे क्या है कि जब 7 बजे बंद होने वाले होते हैं, कल मुझे जरूरी जाना था और 6:30 बजे मुझे याद आया कि हुल्लड़बाजी थी क्योंकि 7 बजे बंद होना था और वहां पे जो जंबे गफीर था लोगों का बंदे, वहां पे ज्यादा SOP वायलेशन होती है. भाई पेट्रोल पंप्स जिस तरह 24 घंटे चलते थे उस तरह चलने दें. कोरोना और पेट्रोल स्टेशंस का कोई ताल्लुक नहीं. सो हियर द सजेशन, ये हम देना चाहते थे फॉर हूएवर मेक्स दीज डिसीजंस. ला लीगा का टाइटल और पीछे स्टेडियम बिल्कुल खाली, अजीब सा मंजर होता है ये भी. लेकिन सारे स्पोर्ट्स जब आप देख रहे हो ना, और एक फेक साउंड भी डाला होता है लोग प्लेयर्स को जरा करने के लिए, बकअप करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए एटलीस्ट डाला जाता है. बट यू हियर द साउंड एंड देन यू सी कि वो सारा खाली पड़ा हुआ है, तो फिर वो अजीब सा लगता है. बट कांग्रेचुलेशंस टू द रियल मैड्रिड फैंस, बहुत सारे हमारी टीम में भी लोग, तो इस पे तो हम बात करेंगे आगे चल के. अभी हम जरा तहरीक इंसाफ के हुकूमत में गैर मुंतखब अफराद यानी मुअव्विनीन खुसूसी की बात करेंगे. बहुत सारे माशाल्लाह एडवाइजर्स. हाँ, इनके किरदार पर पहले खुद तहरीक इंसाफ के लोग बात कर रहे थे, अब अदालतें भी सवालात उठा रही हैं. और इस वक्त गैर मुंतखब अफराद पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म इमरान खान के मुअव्विनीन खुसूसी का पूरा एक स्क्वाड है और जो हुकूमती मामलात को चला रहा है. गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भरमी का इजहार किया. जस्टिस कासिम अली खान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है कि मुअव्विन खुसूसी सब कुछ चला रहा है और इस बहरान का जिम्मेदार भी वही है. आपको बताएं, मुअव्विन खुसूसी आवाम का नहीं कैंपेन्स के मफाद का सोचते हैं और गैर मुंतखब लोगों के बारे में मुखालफिन तो एक तरफ, खुद वफाकी वज़रा और हुकूमती MNAs भी सवाल उठाते रहे हैं. बेसिकली कॉर्पोरेट मफाद देखते हैं ना, कंपनीज वगैरह के मफाद. एक रिमाइंडर के तौर पे ये भी देख लें उनकी मौजूदगी में नॉन इलेक्टेड मुशीर जो हैं वो कानून के तहत, किस कानून के तहत कार्रवाई चलाते हैं हाउस की? आज तक ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज है. फवाद चौधरी साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने, और सिर्फ फवाद चौधरी नहीं है, और भी कुछ लोग हैं जो मुअव्विनीन खुसूसी के किरदार के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं. And if I'm not wrong, तो at last count there were 14 of them. ये स्पेशल असिस्टेंट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ 14 फिगर है, 14 हैं ये अफराद. आपको बताएं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वज़ीर आज़म के मुअव्विनीन खुसूसी को खबरदार किया कि अगर उन्होंने आइंदा हफ्ते तक अपनी तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जवाब जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ यक तरफा कार्रवाई की जाएगी. दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की थी कि वज़ीर आज़म के मुअव्विनीन खुसूसी की तैनाती गैर आइनी करार दी जाए. अप्रैल में मुशीरों और मुअव्विनीन खुसूसी की तैनातियों को गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई थी. काबीना के गैर मुंतखब अरकान के असासे जाहिर करने का इमरान खान का वादा भी अब तक तकमील का मुंतज़िर है. आइन में काबीना के लिए सिर्फ वफाकी वज़रा मुमलिकत और 5 मुशीरों का जिक्र है, लेकिन खान साहब ने अपनी सवाबदीद पर कई मुअव्विनीन खुसूसी मुकर्रर किए हैं. इन्हें वफाकी वज़ीर तक के ओहदे भी दिए हैं जो इमरान खान के अपने ही सियासी फ़लसफ़े के खिलाफ हैं. अब वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो इमरान खान साहब के सियासी फ़लसफ़े के खिलाफ हैं, जो उनकी हुकूमत में होती हैं क्योंकि उनका फ़लसफ़ा ज़बरदस्त आइडियल था. अच्छा जी, PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं. अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया. अब्बासी साहब, इस वक्त वफाकी काबीना जहाज़ी साइज़ की है और मुझे याद है पहला ऐलान ही वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा था बड़ी मुख्तसर सी काबीना रखेंगे, लेकिन क्या करें मजबूरियाँ, जिसमें वज़रा मुशीरान के अलावा 14 मुअव्विनीन खुसूसी भी शामिल हैं. जहाँ एक बहस ये है कि इन मुअव्विनीन की कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं है, वहीं अदालतें भी इन मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देंगे. तो तहरीक इंसाफ के अंदर क्या राय है इस पे? क्या सब मुअव्विनीन इतने ही ज़रूरी हैं? वज़ीर आज़म को मुअव्विनीन की ज़रूरत होती है. ये ना तो आइनी कोई मसला है, ना कोई असूली तौर पे कोई गलत बात है. हाँ, पॉलिटिकली होता है कि जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो समझते हैं कि उनका पहला राइट है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको बड़े अच्छे लोग हेल्थ में मिल जाते हैं. जैसे हमें पंजाब में डॉक्टर यास्मीन मिल गई जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस था. हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे सेंटर के फॉरेन मिनिस्टर बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे पास शायद इकॉनमी का हफीज़ शेख से बेहतर कोई इंटरनेशनली एक्सपीरियंस आदमी नहीं है. इसी तरह आपके जो आपका सेंट्रल बैंक है
बड़ी टेक्निकल जॉब है, उसके ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पॉलिटिकल आदमी है, जो पॉलिटिक्स में रहा हो, वो सेंट्रल बैंक को भी समझता हो, या न्यूक्लियर साइंस है, या मैंने बाकी मिसालें दी हैं। तो इनकी आइनी भी कोई रुकावट नहीं है, अखलाकी भी कोई रुकावट नहीं है। हाँ पॉलिटिकल है, और ये है कि जहाँ जहाँ लोगों की कैपेसिटी है वो ज़रूर इनको रिप्लेस करें, लेकिन अल्टीमेटली इनको लोग अनइलेक्टेड कहते हैं, लेकिन इलेक्टेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के ये मर्ज़ी होती है और प्राइम मिनिस्टर का जवाबदेह है। हरगिज़ ये बात नहीं है कि अगर ये लोग जो एडवाइज़र्स हैं ये चले जाएंगे तो ये अपने ओन पे फैसले नहीं करते, दे आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट को हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। कैबिनेट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो इन फैसलों को की तौसीक करते हैं, लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की इतनी बात नहीं है, ज़्यादा सियासी मसला है। अब्बासी साहब, आपने कहा इट इज सॉर्ट ऑफ अ कैबिनेट, एक और टर्म यूज होता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो जब या तो कोई फायदा हो रहा हो, कोई बेहतरी आ रही हो, तो जितने लोग आपने भर्ती करने करें, लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद बेहतरी अगर आपको ना नजर आ रही हो, आवाम को एक इमेज भी अच्छा ना बन रहा हो, तो फिर नजरसानी इस पर करनी चाहिए। खैर, आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि अदालतों की बात हो गई, लेकिन एक राय ये भी सामने आई है कि गैर मुंतखब अफराद की एक बड़ी टीम के साथ हुकूमत चलाना खालिस पार्लिमानी निज़ाम तो नहीं है, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जो किसी ना किसी तौर सदारती निज़ाम जैसा एटलीस्ट ये तासुर ऐसा दे रहा है। तो आपकी नज़र में पार्लिमानी निज़ाम में इसकी गुंजाइश निकलती है? देखिए, दुनिया में सदारती निज़ाम भी है और पार्लिमानी निज़ाम भी है। हम पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हैं, और उन खामियां ये हैं कि जो लोग लोकल कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत के आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सूबे को या मरकज़ को चलाने के लिए उनका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस या रिक्वायर्ड नो हाउ ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड शायद ना हो सकता है आपको एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग मिल जाएं, हो सकता है किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए कोई एक भी बंदा आपका MP या MNA ना हो, तो उसको ये रीइंफोर्स करता है। अल्टीमेटली आपने डिलीवर करना है, गवर्नेंस बेहतर होती है, और जो विजन और नज़रिया पार्टी लेके आती है उसको मटीरियलाइज़ करने के लिए आपको पॉलिटिकल और टेक्नोक्रेट्स का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गैर सियासी या गैर इखलाकी या गैर आईनी सर चलिए सारी बातें इग्नोर हो जाती हैं इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ राइट, और अगर यही लोग बहुत ज़बरदस्त डिलीवर कर रहे हों तो फिर इनकी प्रेजेंस पे भी किसी को कोई एतराज़ ना हो। अभी ये बता दें कि अगर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ ख़ुसूसी की लंबी लिस्ट देखें तो इसमें अली नवाज़ अवान मुंतखब नुमाइंदे हैं और सरदार यार मोहम्मद रिन जो कि बलूचिस्तान में वज़ीर भी हैं, बाकी लोग गैर मुंतखब और आवाम को जवाबदेह भी नहीं होंगे। और इसीलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये कंपनीज़ के मफाद का ख्याल रखते हैं, अवामी मफाद का नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम को आंसरेबल नहीं है। इन लोगों की कारकर्दगी का हिसाब तो आप सियासी लोगों से अगले इलेक्शन में लिया जाएगा ना, तो फिर आप कैसे जवाब देंगे? यू शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट इट। देखिए, मैं आपका सवाल में एक वज़न है और इसमें सियासी पॉइंट उठता है कि जो लोग स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, मामले ख़ुसूसी होते हैं, वो जवाबदेह नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अगर इमरान खान साहब ना होते तो वो काउंसलर भी ना बन सकते। लिहाजा अल्टीमेटली जवाबदेह पार्टी है, जवाबदेह पार्टी का लीडर है, और पार्टी का लीडर अगर फैसला करता है तो कल उसने आवाम के पास जाना है, उसने पार्टी का वोट भी लेना है, अपने लिए भी वोट लेना है। तो ये बात हरगिज़ नहीं है कि जो मावनीन है ये चले जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ हैं, हम उनको जवाब देंगे। हमें अपने वज़ीर आज़म पे, अपने पार्टी चीफ पे पूरा एतबार है कि वो मुल्क की बेहतरी, इदारों की बेहतरी और आवाम के बेहतरीन मफाद में वो फैसले करेगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो इसका नुकसान हम सब का होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी का और पार्टी के लीडर का होगा। शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। आपने कहा बहुत से लोग, ये आपके अल्फाज हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि अगर इमरान खान साहब का ब्रांड उनके सामने अटैच ना होता तो वो काउंसलर भी ना बन सकते, और इसीलिए फिर हम उन लोगों का अपने अवाम, अपने हल्के के लोगों से कोई ताल्लुक़ ना होना भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनको कोई कंसर्न नहीं है, वो अपने हल्के में सालों महीनों यही सिर्फ बनता है, और अगर ये लिंक ना होता तो फिर वो भी ना होते, तो फिर इसलिए इतनी
وہ اس لیے اپنے حلقوں میں نظر نہیں آتے, وہ صرف پی ایم ہاؤس میں نظر آتے ہیں یا پھر وہ عمران خان صاحب کی خوشنودی کرتے ہوئے ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں جن علاقوں سے, جن حلقوں سے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں. چونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ وہ کاؤنسلر بھی منتخب نہ ہو سکتے اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہ کھڑے ہو رہے ہوتے, تو پھر وہاں کے عوام سے ان کا نہ کوئی تعلق ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ اب کام کر لیں, اب بلڈ کر لیں اور اپنے فیوچر کو سیکیور کریں, لیکن نہیں. سنسیئرٹی پھر ہوگی, مطلب اس پہ ڈاؤٹ پھر آپ کا اٹھتا ہے. اور ان کو بھی چونکہ یہ اندازہ ہے ہما کہ وہ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی منتخب ہوئے ہیں, تو بس ان کی کانسنٹریشن بھی اسی طرح رہتی ہے کہ کسی طرح پرائم منسٹر خوش ہو جائیں ان کی باتوں سے, اور حلقے کے عوام خوش ہیں کہ نہیں ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ آف کورس پیپل ہو آر واچنگ, آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں, کہ آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ آلدو وی ڈو گیٹ اے لاٹ آف ٹویٹس اس ڈائریکشن میں, لیکن آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں بیکاز ہم نے ابھی بات کی ہے. صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں جہاں دیگر تمام تعلیمی ادارے بند ہیں, آن لائن ایجوکیشن کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہیں ذہنی امراض میں مبتلا بچوں کے والدین اپنے بچوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے پریشانی کا شکار ہیں, کیونکہ ایسے بچوں کو مکمل طور پر گھروں میں بند کرنا بھی ان کی ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. بڑا ہی مشکل سچویشن ہے وہ فار پیرنٹس آف سچ کڈس. اور جیسے آٹزم میں مبتلا بچے اور ان کے والدین کافی مشکل میں نظر آتے ہیں, ایسے میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل نے گھروں میں بند ذہنی امراض میں مبتلا بچوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے والدین کو مفت آن لائن تربیت کا کام شروع کیا ہے, وچ از گریٹ بیکاز کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی کلوز اور کوئی آپ کو ڈائریکشن ضرور چاہیے ہوتی ہے کہ کس طرح ڈیل کیا جائے. آغا خان یونیورسٹی اسپتال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ میاں, ماہر امراض نفسیات ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں, ذہنی نشو و نما کے مسائل جو ہیں بچوں میں پرٹیکولرلی, ان کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ, آٹسٹک بچے ہوں یا پھر اور اسپیشل چلڈرن ہوں, ظاہر ہے والدین کے لیے پہلی مشکل ہوتا ہے. انہیں کانسٹنٹ سیشنز کے لیے لے کے آتے تھے, پھر نہیں لا سکتے, بچوں کے بارے میں لوگ ویسے ہی ورڈ ہوتے ہیں. تو کیا حل نکالا ہے آغا خان اسپتال نے یا پھر آپ لوگوں نے, کس طرح سے انہیں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں؟ So first of all, thank you for having me on the show. So یہ اس وقت بہت زیادہ ایک پرابلم آ گیا ہے پیرنٹس کے اوپر بھی, فزیشنس کے اوپر بھی. یہ بچے جن کو آٹزم ہے, ADHD ہے, یا ایون آپ کے ٹین ایجرز ہیں جو کہ اب گھروں میں بند ہیں, ان میں بیہیویئرل پرابلمس تھوڑے دیکھے جا رہے ہیں بیکاز دے سو فرسٹریٹڈ, نہ اسکول ہو رہا ہے ان کا, ان کی آن لائن ایجوکیشن میں بھی بیچ میں بریک آ گیا ہے. سو پیرنٹس ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. پیرنٹس آر بہت زیادہ ایک کارنرڈ ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں. اینڈ جو کنٹینیوس تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے اسپیچ تھراپی, آکوپیشنل تھراپی, بیہیویئر تھراپی, اس میں اگر بریک آ جاتا ہے تو جتنے ہم نے اسٹیپس فارورڈ لیے بھی ہیں تو ہم بچے ریگریس کر رہے ہیں ابھی, جو کہ پیرنٹس کے لیے بہت کنسرننگ ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اسپیچ میں کچھ تھوڑا آگے ایڈوانس کیا تھا, ناؤ دے ہیو لاسٹ دوز ورڈز ایز ویل. سو Dr. Aisha, is the responsibility more on the parents now? Because obviously چونکہ اب سب چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں تو وہی بیچ میں ایک لنک بنتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ایکسپرٹ سے وہ سیکھیں اور پھر وہ اپنے بچوں کو ڈیل کریں اس طرح. آئی تھنک اور کوئی ہمارے پاس اس وقت چارہ نہیں ہے بیکاز بچوں کو دوبارہ سے اسپیچ تھراپی میں لے کے آنا, بیکاز وہ بہت فزیکلی آپ قریب آ کے آپ کو وہ تھراپی کرنی پڑتی ہے. سو یو آر پٹنگ دوز کڈز ایٹ رسک اینڈ یو آر پٹنگ دی تھراپسٹ ایٹ رسک, فیملیز ایٹ رسک. سو واٹ وی تھاٹ وی وڈ ڈو از کہ ہم پیرنٹس کو امپاور کریں, بیکاز وہ کوشش تو گھر میں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. سو مائٹ ایز ویل ٹرین دیم, ان کی کیپیسٹی تھوڑی بلڈ کریں, پرنسپلز ایٹ لیسٹ جو ہم تھراپیز کرتے ہیں ان کے سکھا سکیں, تاکہ جو ایٹ لیسٹ انہوں نے گینز کیے تھے وہ کنٹینیو کر سکیں. اور بھی طریقے سے جو بچوں کے ایشوز آ رہے ہیں, بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں, یا فرسٹریشن کی وجہ سے کوئی کنسرنز آ رہے ہیں, اینزائٹی آ رہی ہے بچوں میں, تو پیرنٹس واٹ کین پیرنٹس ڈو ایٹ ہوم. آپ کی موجودگی کا ڈاکٹر صاحبہ فائدہ اٹھاتے ہوئے, خصوصی بچے, آٹسٹک بچے یا ادروائز بچے, ظاہر ہے بچوں کو اگر بہت دیر تک آپ کنفائن رکھیں گے گھر وغیرہ میں تو بچے کریزی ہو جاتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا والدین کو بھی کہ کیا کریں. نہ انہیں باہر لے کے جا سکتے ہیں, نہ پلے گراؤنڈ لے کے جا سکتے ہیں, نہ کہیں بہت زیادہ آؤٹنگ ہو رہی ہے. تو کیا ہم کریں ایسا بچوں کے ساتھ جس سے وہ تھوڑا سا نارمل رہیں؟ کچھ ٹپس آپ ہمیں دے سکتی ہیں؟ So you know what I've been telling parents, because I'm میرا اسپیشلٹی چائلڈ ایڈولیسنٹ سائیکائٹری ہے, تو میرے پاس بہت زیادہ یہ پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں. آئی ٹیل دیم کہ ایک تو کوشش جتنا کر سکتے ہیں, پاسبلٹی آپ کے لیے ہے کہ کوئی اسٹرکچر ضرور مینٹین کریں, بیکاز
کمپلیٹلی بچوں کا سائیکل جو ہے وہ فلپ ہو چکا ہے, راتوں کو جاگ رہے ہیں, صبح 1 بجے اٹھ رہے ہیں, وچ از ناٹ گڈ فار چلڈرن. سو اگر ایک کوئی ہم اسٹرکچر کر سکتے ہیں اینڈ ود ان دیٹ اف دیر آر تھنگس دیٹ یو کین ڈو, اگر آپ کا کوئی آس پاس میں کوئی پارک ہے یا آپ کے پاس ایریا ہے گھر کے اندر, آپ کی چھت ہے, آپ کا ٹیرس ہے, آپ کے باہر روڈز ہیں, ڈو ٹیک دیم آؤٹ فار اے واک, چھوٹے گروپس میں 1 بچے کے ساتھ 2 بچوں کے ساتھ, جہاں پہ زیادہ جھمٹا نہیں ہو, ویئر یور پراپر PPEs, ماسک پہن کے. But it's important for children to get some physical activity every day, whether it's cycling اور تھوڑا سا آپ نے اپنے چھت پہ جا کے ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل لیا, تھوڑا سا کرکٹ کھیل لیا. Those kind of things are extremely important for children. And also اگر آپ family time incorporate کر سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ساتھ بیٹھ کے کوئی فیملی گیم کھیل لیا, اسٹوری ٹیلنگ کر لی, something where بچوں کا کنیکشن فیملی کے ساتھ اور پیرنٹس. اچھا, ایک تو یہ وہ بچے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو بول سکتے ہیں, جو تھوڑے بڑے ہیں, وہ بچے جو ابھی بول نہیں سکتے, ٹوڈلرز 2-2.5 سال 1.5 سال, یہ بچے سے چیختے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, اور شاؤٹ کرتے ہیں, they scream at the top of their lungs. تو وہ ان کے لیے کیا کریں, کیونکہ والدین کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں ان کے ساتھ. So which is why جو ہم تھیراپی کروائیں گے اور ان کو ان کی ٹریننگ کریں گے, کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, we will try to explain to them کہ first of all it's very important to understand why are they screaming, what's going on. بچے ایسے ہی نہیں اسکریم کرتے, یا تو وہ کسی تکلیف میں ہیں, یا فرسٹریٹڈ ہیں, یا اپنی بات نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں جو ان کو جو وہ چاہ رہے ہیں. تو اس میں ڈسٹریکشن ورکس ریلی نائسلی. آپ کس طریقے سے کیا چیز ہے جو بچے کو پریشانی ہے, are they hungry, are they just bored. So what is it that you can do to help respond to their need at that point? بالکل اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ٹائم بڑا کم ہے, لیکن آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, اتنے زیادہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, مفت میں یہ سروس کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ڈو یو اونلی انٹرٹین دوز پیرنٹس اینڈ obviously دوز کڈس جو آلریڈی آپ کے اس پروسیس کا حصہ ہوں بفور کووڈ آلسو, یا پھر اب نئے طریقے سے بھی لوگ اس سروس کو مفت اور obviously آپ لوگوں کی ایڈوائس لے سکتے ہیں؟ Right. So they can call our helpline. ہم نے جب start کیا تھا تو we really want, we were focusing on our parents جو already ہمارے, who are already seeing us, یا ہمارے ساتھ, connected ہیں. But, it's at some point we realized that the need is really big. So we are opening it to other parents as much as possible. Online kar rahe hain, so we have the capacity to actually teach as many parents who want to engage in this, and they just need to call our helpline and we can connect them ke different capacity training workshops ho rahe hain, kuch behavioral ke liye, kuch speech ke liye, kuch occupational ke liye. So we can put them and plug them in the right workshop taaki usme 3 to 4 workshops ke upar they can get the training in that area. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عائشہ میاں ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آئی ہوپ کہ ڈاکٹر صاحبہ کی پریزنس سے بہت سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. تو آپ ان کے اسپتال کی AKU کی ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں, یہ ورچوئل سیشنز ہیں. اچھا, اسپیشل بچوں کے لیے ویسے اتنی مدد درکار ہوتی ہے, بیکاز آپ بڑے ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں اگر آپ کو اکیلا کرنا پڑے, اور پھر کووڈ کی وجہ سے جب یہ ایونیوز ختم ہو گئے تو وی کین اونلی امیجن کہ پیرنٹس کے لیے کتنی پینک سچویشن ہوگی, کیونکہ ایک اچھی جگہ اگر آپ کا رابطہ ہو جائے, جس طرح یہ AKU میں ڈاکٹر عائشہ میاں بتا بھی رہی ہیں, اور پھر ایک دم سے آپ کو وہ فیسلٹیز نہ ملے, اٹ از ڈانٹنگ. تو پلیز یہ مفت فیسلٹیز ہیں, ان کا فائدہ ضرور اٹھائیں. ہم یہاں پہ ضرور ان پیرنٹس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے جو اس طرح کے بچوں کی نگہداشت کر رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو گائز, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. اور ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے سیلیبریٹڈ کرکٹر محمد عامر کی فریش بیبی پکچر ہے, اور یہ ان کی سیکنڈ ڈاٹر, دوسری بیٹی ہوئی ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کی ہے تصویر. زویا عامر has a daughter before this as well, اور ماشاءاللہ بہت ہی کلوز ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ, کیونکہ وہ اکثر ہی اس کی تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ. اکثر انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان کی دعا بھی تھی کہ ان کی دوسری بھی بیٹی ہو. So he's like it is very evident because ان کا جو پہلی بیٹی کے ساتھ ان کا جو بانڈ ہے وہ بڑا اسپیشل ہے, وہ نظر آ جاتا ہے. ہر وقت اس کی تصویریں لگاتے رہتے ہیں, ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ دکھاتے رہتے ہیں, اور اس کی برتھ ڈے سیلیبریشنز بڑی گرینڈ کرتے ہیں. اور عامر آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو اور آپ کی پوری فیملی کو بہت بہت مبارک ہو, اینڈ وی وش اینڈ پرے کہ اللہ پاک اس بچی کی بہت ساری خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب کرے. آمین. اچھا جی, یہ ہم آپ کو تصویر دکھانا چاہتے تھے بیکاز یہ بڑی مشہور اور وائرل ہو رہی ہے آج کل. ایک کرائسس کی بات کر لیں جاتے جاتے. آئی نو اٹس اے TGIF بٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس. تو آپ کو بتائیں کہ شوگر ملز کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت کو فری ہینڈ مل گیا, اور سپریم کورٹ نے رکاوٹیں ختم کر دی. اب بھی چینی کی قیمت کم کرانے کے لیے کوئی ایکشن نہ ہوا
तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत के कांधों पर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हुकूमत और इदारे चीनी बहरान में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को ये हिदायत भी की है कि शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर ज़रूरी इक़दाम ना किए जाएं। अब हुकूमत के पास ये बहाना नहीं बचा कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसके हाथ बंधे हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा हमारे ही शो में कह चुके हैं कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे पे तोहमतें लगानी बंद कर दें और हक़ाइक़ सामने लाएं। जो जिम्मेदार है वो अपनी सफाई पेश करे और अगर वो मुनासिब सफाई पेश करता है तो उस पर फिर उंगलियां उठानी बंद हो जानी चाहिए। और जो इस नाजायज हरकत में जो मुब्तला है, जिसने लोगों को लूटा है या मुतासर किया है, तो उसको कटहरे पे लाना जरूरी है। अच्छा जी, आपको बताएं कि इसी पर हम बात भी करेंगे और हमें ज्वाइन किया है माहिर इजनास यानी कमोडिटीज़ एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि हम बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में चीनी की कमी और फिर इसकी कीमत बढ़ने के पीछे वजूहात क्या हैं। हुकूमत की जानिब से तो ऑब्वियसली एक इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, आप मुख्तसरन अगर हमें बता दें कि असल मसला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा चीनी की पैदावार भी ज़्यादा हुई है और कीमतें जो असल बढ़ रही हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि शुगर मिलर्स जो हैं वो चीनी को रोक रोक के बेच रहे हैं और उस सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से मार्केट में जो है प्राइस बढ़ती है। और इसके अलावा जो है मार्केट के अंदर सट्टा भी हो रहा है, बेनामी सेल भी हो रही है और चीनी की कीमतें उसी वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी सप्लाई की शॉर्टेज विच मींस कि मैन मेड सिचुएशन क्राइसिस होता है। शम्स साहब, हुकूमत चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट लेकर आई और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इन्हें फौरी एक्शन की इजाज़त मिल गई है कि चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या करना चाहिए हुकूमत को कि ये जो एक रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर शायद कुछ कार्रवाई हो जाए, लेकिन चीनी की कीमतें मुस्तकिल तौर पर गरीब की पहुंच में रहें, इसके लिए क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला किया है उसका बहुत एक अच्छा असर आएगा और हुकूमत के पास अब कोई रुकावट नहीं है कि शुगर बैरन्स के ख़िलाफ़, शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ना ले। और हुकूमत को चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं उससे शुगर के होल्डर्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उन पर क्रैकडाउन करें और साथ ही उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में लेवल के इनके पास होते हैं उसके ऊपर कवानीन भी मौजूद हैं, उससे प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। और शुगर बैरन्स को जो है उसकी जो कमीशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो प्राइस आई है उस पर एक मुनासिब प्रॉफिट रख के उसको बेचना चाहिए। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। और बिल्कुल यही बात है कि ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, सिचुएशंस और क्राइसिस क्रिएट किया जाता है। आपको दिखाना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म माजी में भी माफिया से मुकाबला करने का बहुत बार ऐलान कर चुके हैं, तो एक दफ़ा हम दोहरा रहे हैं। जरूरी दिखाएं। जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट आने वाली है और इंशाअल्लाह उन सारों को सजाएं हम देंगे। अच्छा जी, ये तो बस एक रिमाइंडर था छोटा सा। जब खान साहब ये कहते थे ना कि छोड़ूंगा नहीं, तो यू बिलीव हिम, तो अब दिल चाहता है कि वो ना छोड़े और पकड़े एक एक चीज़ को एंड देन द डिलेज कॉस्ट वो आपको ज़रा थोड़ा सा नर्व कर दे। एक और मामला हम जाते जाते बताना चाहते हैं। बच्चों की हम बात कर रहे थे, बच्चों के अगवा का मामला इंतहाई संगीन होता है और कराची में 2 दिन पहले एक्चुअली सुरजानी टाउन के इलाके से कमसिन बच्चे अरसलान को घर के बाहर से ही अगवा कर लिया गया और बर वक्त इसके बाद कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई और सिंध रेंजर्स भी फिर उस पर मुतहर्रिक हो गई। और सिंध रेंजर्स ने क्या किया, इलाके की नाकाबंदी की और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी और एकदम से जिसे कहते हैं ना ज़मीन पर हमें एक्शन देखने को मिला और बर वक्त कार्रवाई की बदौलत फिर मुल्ज़िमान ज़रा सहम गए और डर के मारे ये एक वीरान इलाके में रोड के पास इस बच्चे को छोड़कर फरार हो गए और बच्चे को फाइनली फिर उसके वालिदैन से मिला दिया गया है। छोटा सा ये बच्चा है, आप सोचें कि माँ बाप
पे वो चंद घंटे कितने भारी गुजरे होंगे जब ये मुलजिमान मैं तो ये तस्वीरें ये विजुअल्स देखी थोड़ी सी खौफजदा हो गई हूँ, बट कमाल है भाई रेंजर्स की। देखिए खौफ जो है ना इसमें इट मैटर्स अ लॉट। अगर पता हो कि यहाँ पकड़ है तो फिर ऐसी चीज़ें भी कम होगी। और साथ साथ मुझे याद आए बच्चों का एक बार बच्चों का गुम जाना एकदम से। पंजाब में तो एटलीस्ट वो ज़ैनब अलर्ट का एक बड़ा चर्चा हुआ था ज़ैनब केस के बाद। आई डोंट नो इफ इट एवर केम इनटू एक्शन, कभी उसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इस पे हम जरा फॉलो अप लेंगे। अच्छा, अभी बड़ी ईद में ज़्यादा दिन रहे नहीं है और अब वीकेंड है तो बहुत से लोग मंडियों का रुख करेंगे, मवेशी मंडियों का रुख करेंगे। तो हम बस आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि प्लीज़ SOPs का ख्याल रखिएगा। वैसे भी आपको मंडी में मास्क पहन के जाना चाहिए क्योंकि वहाँ मिट्टी और धूल इतनी होती है और अब तो कोरोना का ज़माना है, तो आप ज़रा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों से, मास्क पहन के जाएं और प्लीज़ बच्चों और बुजुर्गों को बिल्कुल ना लेके जाएं। आई नो बच्चों को बहुत शौक होता है इसको, अब जितना आप सफाई से काम करेंगे ना उतना आपसे इन्फेक्शन दूर रहेगा। बच्चे आपसे जिद करेंगे कि उन्हें मंडी जाना है, लेकिन आप उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा जब जानवर घर आ जाएगा तो आप जितना खेलना हो खेल लेना उसके साथ। बच्चों के साथ कभी कभार जबरदस्ती की जाती है ना कि क्या करना है और क्या नहीं। दिस इज वन ऑफ दोस टाइम्स जब आप नहीं लेके जाना चाहिए तो ना लेके जाना। वैसे या तो घर पे डिसइंफेक्ट कर लें, नहीं तो डिसइंफेक्टिंग स्टेशंस बने हुए हैं शहरों में मुख्तलिफ मकामात पे। फन टू डू, सारे मिलके अपने गैराज में भी कर सकते हैं। प्लीज कोई ऐसा केमिकल ना लगा दीजिएगा कि जानवर ही तड़प के रह जाए। नहीं मतलब लोग ख्याल करते हैं। अच्छा एनीवे जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड और बिल्कुल SOPs आपने फॉलो करने हैं। विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।